everyone, I hope you guys are doing well. So today is the second class where we are going to solve the PYQs related to communication. So this is the fourth unit, communication, and ये है आपके सामने the first question. This question was asked in 2021. Identify the sequence of cultural barriers in communication as listed by experts. So ये question क्या पूछ रहा है आपसे? Cultural barriers के बारे में पूछ रहा है. So there are what? There are multiple barriers in communication. And what are these barriers? We discussed. So there can be some personal barriers. कैसे हो सकते हैं? कुछ किसी के साथ आपकी preconceived notions, ये personal barriers हो सकते हैं. Ego clashes, etc. There can be psychological barriers. Psychological barriers क्या होते हैं? Barriers जो सारे आपके mind में ही रहते हैं. कैसे आपके mind में रहेंगे ये सारे barriers? जैसे कि if I have say selective attention, selective retention or maybe halo effect. तो halo effect क्या होता है? किसने मेरे साथ बुरा किया, किसने अच्छा किया, मैंने उनके बारे में एक stereotypical image बना लिया. So ये सारे क्या हैं? हमारे psychological barriers. There are physiological barriers, there are physical barriers. Then सबसे important क्या है? Semantic barrier. इसी तरीके से there can be cultural barrier also. जब आपके दो, what is intercultural communication? When two people from different culture or maybe a lot of people from different culture are trying to communicate with one another, it is called as cultural communication, intercultural communication. यहाँ पे barrier कब आएगा? यहाँ पे barrier आ सकता है when you think that your culture is better, when you think that your culture is more superior than the other culture, or maybe you think that the other culture or the rules and regulations of the other culture are not clear to you, then ये सारे barriers create करते हैं. तो यही पूछा है, identify the sequence of cultural barriers in communication as listed. So we have methods of conflict resolution, difference of tolerance of conflicts, semantic, tone difference and word connotation. On the basis of this you have to see कि sequence क्या होगी cultural barriers की. Sequence क्या होगा? So the right answer is B. B right answer है. सबसे पहले हम क्या देखते हैं? Semantic. Now semantic है language related. अगर आपको किसी की language ही समझ नहीं आई तो आप आगे चल ही नहीं सकते उस चीज में. So सबसे पहले semantic आएगा. उसके बाद आता है word connotation. Connotation means कि आपने meaning क्या find किया है. तो जब आपको word समझ आ गया तो उसके denotative, connotative meanings आप सोच सकते हो. Meaning formation. उसके बाद what is your tone, what is your pitch? So tone also, these are the non-verbal communication barriers that can come up in between. Then there can be what? Then there can be difference in tolerance. कि आप बिल्कुल ही intolerant हो किसी और के culture के लिए और आप इनसे ज़्यादा conflicts भी solve नहीं करना चाहते हो. और methods of conflict resolution सबसे end में आएगा. तो सबसे बड़ा barrier से सबसे छोटे barrier पे हम जा रहे हैं. सबसे बड़ा barrier क्या है? सबसे बड़ा barrier semantic barrier. जब आपको कुछ समझ ही नहीं आया, लैंग्वेज रिलेटेड बैरियर, फिर वर्ड समझ नहीं आए, फिर टोन समझ नहीं आई, फिर आपको कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हुए और लास्ट में आपने क्या लिखा है? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ मेथड्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन. कैसे हम लोग रेजोल्यूट कर सकते हैं, डिसॉल्व कर सकते हैं होने वाले कॉन्फ्लिक्ट्स को. In a classroom context, when innumerable meaningful messages emanate from the finite number of linguistic signals, it is called as what? एक classroom communication में जब innumerable meaningful messages आते हैं, बहुत सारे meaningful messages आते हैं, तो उनकी finite number of linguistic signs हो सकते हैं. ये क्या दिखाता है? That the language is cognition in nature, cognitive है. It is called as information processing, productivity और semanticism. तो ये क्या denote करता है? In classroom context, when innumerable meaningful messages emanate from finite number. Finite मतलब आपको पता है कितने messages आ रहे हैं. 5 dialogues हमने exchange करे. 5 dialogues हमने exchange करे. अब इन 5 डायलॉग्स में से हम लोगों ने देखा दैट देयर आर लिंग्विस्टिक सिग्नल्स दैट आर मतलब लार्ज इन नंबर, इनन्यूमरेबल. इन 5 के डेनोटेटिव, और कॉनोटेटिव नेचर चेक करके आप देख सकते हो कि कम से कम 10 और मीनिंग्स आपने निकाल लिए. एक मीनिंग से आपने इसके बहुत सारे मीनिंग्स निकालने स्टार्ट कर दिए. ये क्या कहलाता है?
दिस इज कॉल्ड एज सी, दैट इज प्रोडक्टिविटी। एक मैसेज से आप मल्टीपल चीजें निकाल सकते हो, अंडरस्टैंड कर सकते हो। जैसे एग्जाम्पल दिया था मैंने आपको होम का, तो होम कोई बोलेगा होता है घर, अ प्लेस टू लिव, अ प्लेस जहां मैं रहता हूँ, रहती हूँ। लेकिन इसका कॉनोटेटिव मीनिंग क्या हो सकता है? कंफर्ट। आप किसी को बोलते हो यू आर होम टू मी, तो या क्या बोलते हो? तुम मेरे लिए कंफर्ट हो, मुझे तुम्हारे साथ रहना अच्छा लगता है। दिस इज प्रोडक्टिविटी। देन given below are two statements. Communication reflects the dimension of power. Power and unethical communication are strongly interrelated to one another. Communication reflects the dimension of power. And power and unethical communication are strongly interrelated. Power and unethical words ढंग से पढ़ो, ethical नहीं है, unethical है। Communication reflects the dimension of power, and power and unethical communication are strongly interrelated. Take your time. Tell me कि सही आंसर क्या होगा? What would be the right answer? So D is the right answer when statement 1 is true but 2 is false. Communication के अंदर हमेशा power dynamics होता है. Let us take a very easy example. अब अगर हम क्लासरूम का एग्जाम्पल लेते हैं, तो क्लासरूम में आपके पास क्या है? सबसे पहले तो एक प्रिंसिपल है ना? एक प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल के नीचे एक टीचर होती है, सुपरवाइजर होती है। वैसे तो हमने यहाँ टीचर ले लिया, चलो टीचर है। टीचर के नीचे बहुत सारे बच्चे हैं, तो इजंट इट अ हायरार्की? ये एक हायरार्कियल स्ट्रक्चर नहीं है, ये एक हायरार्कियल स्ट्रक्चर है जिसके अंदर आप क्या करते हो? ऊपर से नीचे कम्युनिकेशन अपवर्ड से डाउनवर्ड की तरफ मूव कर रहा है। तो क्या यहाँ पावर डायनेमिक्स नहीं है? ऑलवेज यू विल रिमेंबर, ऑलवेज यू विल सी दैट सबसे ज्यादा पावर किसके पास है? प्रिंसिपल के पास। देन वो पावर कम होती चली जाती है। सो पावर डायनेमिक्स इज ऑलवेज देयर व्हेन कम्युनिकेशन इज इन्वॉल्व्ड। डेफिनेटली इट इज देयर। सो दिस इज ट्रू। ये क्या है? ट्रू है। बट पावर एंड अनएथिकल कम्युनिकेशन आर रिलेटेड। मतलब जहां पावर आएगी वहां अनएथिकल ही होता है, एथिकल भी होता है। फॉर्मल कम्युनिकेशन, फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है? फॉर्मल कम्युनिकेशन इट इज ऑलवेज पावर ओरिएंटेड। हमेशा कैसा होता है? पावर ओरिएंटेड ही होता है। सो क्या आंसर हुआ? डी राइट आंसर हुआ। सो फॉर्मल, इनफॉर्मल, दो तरीके के कम्युनिकेशन होते हैं ना, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है? फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है जो स्ट्रक्चर्ड है, एंड इफ द कम्युनिकेशन इज स्ट्रक्चर्ड देयर विल बी पावर डायनामिक। यहाँ पे हमेशा पावर डायनामिक्स होगा ही होगा। जैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर एक बॉस है, उसको बॉस को सबऑर्डिनेट से बात करनी है, तो यहाँ पे ये क्या दे रहा है? कमांड दे रहा है। एक तरीके का कैसा कम्युनिकेशन है? फॉर्मल कम्युनिकेशन, जहां पे ईमेल्स लिखे जा सकते हैं या फिर क्या हो सकता है? ऑफिशियल कमांड्स हो सकते हैं यूज। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन वो होता है जहां पे कोई भी किसी से भी बात कर रहा है, तो ये नॉन स्ट्रक्चर्ड होता है, नॉन स्ट्रक्चर्ड कम्युनिकेशन होता है। यहाँ पे देयर इज नो पावर डायनेमिक, यहाँ पे पावर डायनेमिक्स नहीं होते हैं, जिसकी वजह से गॉसिप्स बहुत ज्यादा क्रिएट होती हैं। And you see large number of distortions of message का बहुत डिस्टॉर्शन होता है। सो यहाँ पे क्या स्ट्रक्चर क्रिएट होता है? यहाँ पे बहुत ज्यादा ग्रेप वाइन स्ट्रक्चर क्रिएट होता है। क्या क्रिएट होता है? ग्रेप वाइन, जिसकी वजह से यहाँ पे रूमर्स होते हैं, बिकॉज हर पर्सन दूसरे पर्सन से बात कर लेता है। तो यहाँ पे पावर डायनेमिक्स क्या बन जाती है? अनएथिकल बन जाती है। लेकिन यहाँ पे एथिकल, हमेशा अनएथिकल नहीं होती है। ओके, द एडवांटेजेस ऑफ डायगोनल कम्युनिकेशन आर व्हाट? डायगोनल कम्युनिकेशन की एडवांटेजेस क्या हैं? तो लेटरल, हॉरिजॉन्टल, डायगोनल, अलग अलग तरीके के कम्युनिकेशन हो सकते हैं। लेट मी शो दिस पिक्चर। डायगोनल कम्युनिकेशन। सो ये कम्युनिकेशन देखो,
कहाँ से दिखेगा आपको डायगोनल का कोई अच्छा सा एग्जाम्पल? ओके, ये एग्जाम्पल देख लेते हैं, या फिर आई कैन ड्रॉ दिस फॉर यू अगर नहीं दिख रहा है तो. सो एक कम्युनिकेशन, एक ये हमारे पास कौन है, हमारे बॉस है. बॉस ने दो टीम्स बना दी है ना, यहाँ पे टीम्स है, टीम ए, टीम बी. सो एंड हियर लेट्स हैव टीम डी एंड टीम एफ. तो यहां और भी लोग हैं, यहां पे इनसे बात कर रहा है, ए एफ से बात कर रहा है, बी डी से बात कर रहा है. सो इस तरीके, और ये सारे किसको रिपोर्ट करते हैं, ये सारे रिपोर्ट करते हैं हमारे बॉस को. दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज कॉल्ड एज डायगोनल कम्युनिकेशन. इसे क्या कहते हैं, डायगोनल कम्युनिकेशन. व्हेन दिस मैनेजर इज टॉकिंग टू दिस ग्रुप, दिस वन इज दिस टॉकिंग टू दिस ग्रुप. या फिर कैसा हो सकता है, कोई भी किसी भी डिपार्टमेंट से बात कर रहा है. दिस इज कॉल्ड एज डायगोनल कम्युनिकेशन. सो डोंट यू थिंक बेटर डिसीजंस वुड बी टेकन जब डायगोनल कम्युनिकेशन होगा? बेटर डिसीजंस वुड बी टेकन व्हेन देयर इज डायगोनल कम्युनिकेशन. से सेल्स डिपार्टमेंट एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट्स के वीसी आपस में बात कर रहे हैं, या फिर आपस में फाइनेंस एंड सेल्स के लोग बात कर रहे हैं. सो दिस विल क्रिएट अ मोर होलिस्टिक एनवायरमेंट, इजंट इट? सो यहाँ पे एडवांटेजेस क्या होंगे डायगोनल कम्युनिकेशन की? रेजिस्टेंस, साइड ट्रैकिंग, एनोमी, मोरल बूस्टिंग और कोऑर्डिनेशन और को-कोऑर्डिनेशन. सो राइट आंसर वुड बी सी. सी वुड बी राइट आंसर. साइड ट्रैकिंग कर पाओगे. साइड ट्रैकिंग मतलब आप औरों के ग्रुप पे भी ट्रैक रख पाते हो, आपको दूसरे डिपार्टमेंट्स में क्या हो रहा है ये भी पता है, इसे साइड ट्रैकिंग कहते हैं. ऐसे ही एनोमी होता है नेगेटिव इफेक्ट्स, तो ये तो नहीं होगा, नेगेटिव इफेक्ट्स यहाँ हम नहीं क्रिएट करते. रेजिस्टेंस भी नहीं होगा. आप मोराल बूस्टिंग कर सकते हो एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट का, और को कोऑर्डिनेशन से काम करोगे, ढंग से ज्यादा अच्छे से कोऑर्डिनेट कर पाते हो. इन कम्युनिकेशन इंटरप्रिटेशन ऑफ मैसेज डिपेंड्स अपॉन. कम्युनिकेशन में मैसेज में इंटरप्रेट करते टाइम क्या आपकी डिपेंडेंसी का रोल होता है? द कॉन्टेक्स्ट, ट्रांसमिटेड स्पीड, एसोसिएटेड नॉइज और चैनल एफिशिएंसी. तो कम्युनिकेशन का एक छोटा सा इजी सा मॉडल है. वी हैव द सेंडर. सेंडर सेंड्स द मैसेज यूजिंग अ पर्टिकुलर मीडियम. ठीक है, यहां पे सेंडर किसको, रिसीवर को मैसेज सेंड करता है. रिसीवर के पास मैसेज पहुंचता है, यहां पे हो रही है इनकोडिंग, यहां पे हो रही है डिकोडिंग. यहां से हमारे पास व्हाट डू वी गेट, वी गेट अ फीडबैक. We get a feedback. So for giving a feedback, this person will encode the message and this person will decode the message. So there is a role reversal that happens and the feedback is there. There is always a presence of noise in between. This is the normal way in which the process of communication works. In communication, interpretation of this message now this message that is sent, यहाँ पे medium से हम लोग को message send हुआ है, ये रिसीवर कैसे समझ पाता है? ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्टेक्स्ट, स्पीड, ऑन द बेसिस ऑफ नॉइज और चैनल की एफिशिएंसी. सो राइट आंसर वुड बी ए. इट इज ऑलवेज अकॉर्डिंग टू अ पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट. सो एज आई टोल्ड यू, लैंग्वेज डिपेंड्स ऑन कॉन्टेक्स्ट, इट डिपेंड्स ऑन सिचुएशंस. इसीलिए ही हम हमेशा कॉन्टेक्स्ट के पीछे जाते हैं. कॉन्टेक्स्ट कैन बी ऑफ मल्टीपल टाइप्स. कॉन्टेक्स्ट बहुत तरीके का हो सकता है, जैसे कि टेम्पोरल कॉन्टेक्स्ट. टेम्पोरल कॉन्टेक्स्ट, टाइम क्या हो रहा है, या फिर आपका फिजिकल कॉन्टेक्स्ट, इमोशनल कॉन्टेक्स्ट. किसी भी चीज के लिए आपको जानने के लिए यू नीड कॉन्टेक्स्ट, यू नीड व्हाट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट, तभी आप उसे समझ पाओगे. Which of the following factors are important in communication? Slang, cynical attitude, framing, priming and immediacy. इनमें से कौन से फैक्टर्स आर इंपॉर्टेंट फॉर कम्युनिकेशन टू टेक प्लेस? अच्छे कम्युनिकेशन के लिए क्या जरूरी है? सो वन मोर थिंग दैट इज इंपॉर्टेंट,
सो ये कम्युनिकेशन का मॉडल है, ये बेसिक मॉडल है कम्युनिकेशन का। दो देयर इज द रोल रिवर्सल जो हमेशा होता है सेंडर एंड रिसीवर के बीच में, ठीक है। सो यहाँ पे हमेशा फीडबैक जरूरी होता है, विदाउट दैट नेवर अ कम्युनिकेशन कैन बी कंप्लीटेड। विल बी टॉकिंग अबाउट दीज थिंग्स, आई होप वो क्वेश्चन आएगा उसके बारे में। या सो दिस इज द मॉडल दैट यू शुड नो। एक इंटरप्रेटर है आपके पास, so you have here the person who is the sender, he'll send the message, decoding encoding destination पे पहुंचने के बाद and फिर feedback आता है। so this is the loop and this is the normal model of communication जो सचराम ने दिया है। so this is important also, ये याद रखना। लेकिन ये कम्युनिकेशन के इंपॉर्टेंट फैक्टर्स क्या है, क्या डिपेंड करता है, किन पे कम्युनिकेशन डिपेंड करता है। सो डी इज द राइट आंसर, वी हैव सी डी एंड ई। सो स्लैंग्स हमें यूज नहीं करने हैं। स्लैंग्स क्या होते हैं ना, स्लैंग्स आर लाइक जार्गन्स और दे आर लाइक क्लीशेज, दे आर व्हाट, दे आर लाइक क्लीशेज, दे आर लाइक क्लीशे, जो कि आप क्या करते हो अगर आप ये यूज करते हो अपने लैंग्वेज में, सो इट मेक्स द लैंग्वेज वेरी टेक्निकल। ये लैंग्वेज को क्या बनाती है, बहुत टेक्निकल बनाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक केमिस्ट के पास जाके आप सॉल्ट के बारे में पढ़ रहे हो, कोई मेडिसिन का नाम नहीं, सॉल्ट का नाम ले रहे हो, सो दिस विल मेक इट वेरी कॉम्प्लिकेटेड, आपको सब समझ भी नहीं आएगा। तो इसलिए स्लैंग्स को अवॉइड करो, इजी लैंग्वेज में बोलने का ट्राई करो। सिनिकल एटीट्यूड क्या होता है, बैड बिहेवियर, किसी के लिए बैड बिहेवियर होना या फिर क्या होना, प्रिजुडाइज होना, वो क्या होता है, सिनिकल एटीट्यूड होता है। तो ये भी नहीं होना चाहिए। प्राइमिंग क्या होता है, व्हाट डू वी मीन बाय प्राइमिंग? प्राइमिंग होता है क्रिएटिंग द मैसेज, उससे पहले कलेक्ट करना चीजों को, प्राइमिंग। फ्रेमिंग, मैसेज को ड्राफ्ट करना, इनकोडिंग भी कह सकते हो, इनकोड करना। एंड इमीडिएसी क्या होता है, सही टाइम पे फीडबैक देना, सही टाइम पे फीड फॉरवर्ड देना, बात करना एक्सेट्रा, इमीडिएसी होता है। इसलिए सी डी एंड ई शुड बी द राइट आंसर। अब यहां से एक वर्ड डिस्कस करते हैं, फीडबैक एंड फीड फॉरवर्ड। क्या ज्यादा अच्छा है, फीडबैक या फीड फॉरवर्ड? तो फीडबैक होता है किसी को रिस्पॉन्स देना आफ्टर द टास्क होने के बाद, या कम्युनिकेशन कंप्लीट होने के बाद आप इससे बात करते हो तो उसे फीडबैक कहते हैं। लेकिन ये फीडबैक हो सकता है किसी को प्रिजुडाइज लगे, किसी को नेगेटिव लगे, लेकिन फीड फॉरवर्ड होता है टास्क होने से पहले ही बता देना। सो दिस इज डन बिफोर द टास्क, ये टास्क से पहले किया जाता है। सो जब ये टास्क से पहले किया जाता है तब हम क्या देखते हैं, अगर टास्क पूरा हुआ ही नहीं है, मैंने पहले ही सपोज इस बच्चे को बता दिया कि आपको ये 1, 2 and 3 थिंग्स कंप्लीट करनी है, पहले ही मैंने अपडेट दे दिया, तो अब ये गलती करेगा ही नहीं। सो फीड फॉरवर्ड हमेशा बेटरमेंट के लिए यूज किया जाता है। एंड यहाँ पे आप क्या करते हो, यहाँ पे प्रिजुडाइज लगता है, यहाँ पे इंप्रूवमेंट लगती है, यहाँ क्या होता है, इंप्रूवमेंट हो जाती है। सो फीड फॉरवर्ड इज बेटर देन फीडबैक, याद रखना। ओके, द सीक्वेंस ऑफ कल्चरल इंस्टीट्यूट्स इन कम्युनिकेशन इज, कम्युनिकेशन के कल्चरल इंस्टीट्यूट्स का सीक्वेंस बताओ। फैमिली, स्कूल, रिलीजन एंड मास मीडिया। फैमिली, स्कूल, रिलीजन, मास मीडिया। इस क्वेश्चन पे आराम से टाइम लो, कल्चरल इंस्टीट्यूट्स के बारे में टेल मी, टेक सम टाइम। Tell me what should be the right answer. Sorry.
what should be the right answer? ओके अगर सबने ये कर लिया है तो लेट मी शो यू द राइट आंसर. द राइट आंसर इज ए. ए इज द राइट आंसर. सबसे पहले क्लोज कॉन्टैक्ट, सबसे ज्यादा आपको इन्फ्लुएंस क्या करेगा? सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस आपको आपकी फैमिली करती है, उसके बाद आपको स्कूल करता है, उसके बाद आपको आपका रिलीजन इन्फ्लुएंस करता है, एंड देन मास मीडिया. तो राइट आंसर क्या होगा? ए. अब थोड़ा सा कल्चरल कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ लेते हैं. सो what is basically culture? कल्चर होता क्या है एंड टाइप्स ऑफ कल्चरल कम्युनिकेशन. सो कल्चर वो होता है जहां पे आप बड़े हुए हो, और कल्चरल कम्युनिकेशन के कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे कि व्हाट इज क्रॉस कल्चरल, इंटरनेशनल कम्युनिकेशन एंड मल्टीकल्चरल. सो intercultural communication क्या है? When two cultures are talking to one another. So intercultural communication refers to the effective communication between people of different culture. तो उनके बीच में cultural differences होंगे but they can overcome it. तो दो intercultural is when two different culture से related लोग आपस में बात कर रहे हैं, उनके बीच में cultural differences आएंगे. For example, I talk in English, you talk in Arabic language. तो वो कल्चरल डिफरेंसेस हो गए. ठीक है, सो वो डिफरेंसेस आएंगे ही आएंगे. देन देयर इज अ नीड फॉर इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन. हम चाहते हैं कि इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन हो ताकि हम वर्ल्ड वाइड आपस में क्या कर सके? ग्रो कर सके. सो इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज क्रॉस कल्चरल, इंटरनेशनल कम्युनिकेशन एंड मल्टी कल्चर. बहुत सारे कल्चर जब एक साथ आते हैं, जब हम लोग प्रॉपर सारे कल्चर्स को एक साथ लाने की बात करते हैं, सो इट इज इंपॉर्टेंट कि ये क्या लाएगा? दिस विल ब्रिंग ग्लोबलाइजेशन. आजकल एक इंपॉर्टेंट फील्ड है ग्लोबलाइजेशन. रेफर्स टू द रिडक्शन एंड द रिमूवल ऑफ बैरियर्स बिटवीन डिफरेंट नेशनल बॉर्डर्स. सो रिमूवल ऑफ बैरियर्स बिटवीन नेशनल बॉर्डर्स क्या होता है? ग्लोबलाइजेशन होता है. यहाँ पे आपको कैपिटल, सर्विस, लेबर से इतना फर्क नहीं पड़ रहा होता है. मल्टीकल्चरल क्या होता है? बहुत सारे डिफरेंट कल्चर के लोग जब एक साथ आते हैं. सो देयर नीड्स टू बी स्प्रेडिंग ऑफ मल्टीकल्चरलिज्म एंड कोलैबोरेशन so that a lot of people would come together, and there will be different people, different race, different color, different caste, creed, सबके लोग जब एक साथ आएंगे, that is called as intercultural communication. उसे क्या कहते हैं? intercultural communication कहते हैं. Right, I hope this is clear. So how can you create intercultural communication? To understand other people's behavior, उनका behavior understand करो, prevent any sort of misunderstanding, respect the differences that are there, culture differences को respect करो, right message at the right time दो. This will create a good intercultural type of communication. अब जैसे ही हम culture के बारे में बात करते हैं, there are two things that you have to remember: high context culture and low context culture. हाई कॉन्टेक्स्ट कल्चर एंड लो कॉन्टेक्स्ट कल्चर, दो चीजें आपको याद रखनी है यहां से. प्लीज रिमेंबर हाई कॉन्टेक्स्ट एंड लो कॉन्टेक्स्ट. व्हाट इज अ हाई कॉन्टेक्स्ट कल्चर? So communication varies according to the degree of field of dependence, and that can be classified in two categories: high context and low context. High and low refers to the degree to which speakers rely on the factors other than explicit speech convey their message. So जब आप देखते हैं कि डायरेक्टली हम मैसेज बोल रहे हैं, डायरेक्टली मैसेज मतलब आप कॉन्टेक्स्ट पे बहुत रिलाई करते हो, तो हाई कॉन्टेक्स्ट कल्चर हो. मतलब कॉन्टेक्स्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है. जैसे कि इंडियन कल्चर के अंदर कॉन्टेक्स्ट, सेटिंग्स, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो ये हाई कॉन्टेक्स्ट नेशंस हैं. ऐसे नेशंस जो लो कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट जरूरी नहीं है, वर्ड्स में मानते हैं ये, इन लोगों के लिए क्या जरूरी है? वर्ड्स आर मोर इंपॉर्टेंट. और यहाँ पे वर्ड्स
words are less important. So high and low context culture. So you can differentiate between them. I'll give you the difference likho. And it was Edward T. Hall, who was a cultural anthropologist, who was the founder of intercultural communication study. So वो founder थे intercultural communication studies के. So he differentiated between high context culture and low context culture. तो high context are concerned with high individualism. यहाँ पे हाई इंडिविजुअलिज्म है. लो कॉन्टेक्स्ट कल्चर किस में मानेंगे? कलेक्टिविज्म में मान जाएंगे. कलेक्टिविज्म. हाई कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लिसिट मैनर एंड यहां पे इम्प्लिसिट मैनर. दे फोकस ऑन वेट ओ उल्टा लिख दिया ना हम लोगों ने. यहाँ पे लो लिख रहे हैं हम लोग. लो हाई. ठीक है. देन वी हैव दे लो क्लास. जो लो कॉन्टेक्स्ट कल्चर है, दे फोकस ओनली ऑन रिक्वायरमेंट्स. उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है वो बोल दिया, ठीक है. मतलब दे फोकस ऑन वर्ड्स. वर्ड से सारी चीजें पूरी हो जाती हैं. And they also avoid merging of issues. वो issues को merge होने से पहले ही रोक लेते हैं. They are very precise और उनके लिए punctuality का बहुत ज्यादा रोल है. क्या है? punctuality का बहुत ज्यादा रोल है. जैसे कि यहाँ पे US या UK हो सकता है एक हाई लो कॉन्टेक्स्ट कल्चर. यहाँ पे they have high commitment to long term relationship. They can merge together. They cannot keep things separate and they are relaxed about time. इनके लिए context is more important and words are less important. So they are here to make relations. वो क्या करते हैं? रिलेशंस पे काम करते हैं. तो इनके लिए नॉन वर्बल एस्पेक्ट्स आर मोर इम्पॉर्टेंट. सो वी हैव हाई कॉन्टेक्स्ट एंड लो कॉन्टेक्स्ट कल्चर. हाई कॉन्टेक्स्ट कन्वर्ट देयर मैसेजेस. They internalize their message. They do what? They internalize their message. They share their message. यहाँ पे feelings involve होती हैं. ठीक है. बहुत ज़्यादा feelings involve करते हैं. लेकिन यहाँ पे ये बहुत closed time पे होता है और feelings involve नहीं होती हैं. Is this clear? I hope this is clear. तो high और low context culture clear हो गया होगा. Given below are two statements. We have one as the assertion and the second as the reason. Giving orders to students in a classroom is a specific form of communication. A manner of order depends upon the cultural background of the students involved. Giving orders to students in classroom is a specific form of communication. Reason is that the manner of order depends upon the cultural background. So the right answer is A. Both the statements are true and R is the correct explanation. In a classroom, there needs to be inclusive environment. मतलब टीचर को सबको ऐड करना है एंड ये एक स्पेसिफिक तरीके का कम्युनिकेशन है. दैट इज अ ट्रांजैक्शनल कम्युनिकेशन इन क्लासरूम वेयर एवरीवन इज गिवन चांसेस टू टॉक एंड दिस डिपेंड्स अपॉन द कल्चरल बैकग्राउंड. टीचर भी चाहती हैं कि सबका कल्चर के अकॉर्डिंग मैं बात करूं. सो ए बिल्कुल ट्रू है. List 1, list 2. Meaningless sound and words, traffic light signals, words that have different meanings, two persons exchanging greeting, communication.
पॉलीसेमी, डायडैक्टिक कम्युनिकेशन, पैरालिंग्विस्टिक, नॉन वर्बल। बहुत ही इजी है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। टेल मी द राइट आंसर। ओके, लेट मी टेल यू द राइट आंसर। पर्सन, सो मीनिंगलेस साउंड एंड वर्ड्स, कोई भी साउंड और वर्ड का मीनिंग नहीं है, तो ये क्या हो सकता है? देन ट्रैफिक लाइट्स, तो ट्रैफिक लाइट्स तो सिंबल्स हो गए है ना, सिंबल्स एंड क्यूज हो गया, तो ये एक तरीके का नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। वर्ड्स विद डिफरेंट मीनिंग्स पॉलीसेमिक होता है। वर्ड्स जो कि साउंड, मीनिंग जो कि साउंडलेस है, मतलब आप यहां पे देख रहे हो पिच या फिर आपकी श्रिलनेस साउंड की, ये हो गया आपका पैरालिंग्विस्टिक। एंड टू पीपल टॉकिंग इज डायडैक्टिक कम्युनिकेशन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इंटरैक्टिव कम्युनिकेशन। क्या कहलाता है? इंटरैक्टिव, टू वे कम्युनिकेशन। सो सी राइट आंसर है, हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया। सक्सेसफुल एजुकेशनल कम्युनिकेशन इज डिपेंडेंट अपॉन द स्किल्स ऑफ, एक अच्छा एजुकेशनल एकेडमिक कम्युनिकेशन किसके लिए होता है? बच्चों की ग्रोथ के लिए होता है। एजुकेशनल है, इंफॉर्मेटिव होना चाहिए, वो किस पे डिपेंड करता है? अंडरस्टैंडिंग द नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ द ऑडियंस, वर्बल कम्युनिकेशन एंड बॉडी लैंग्वेज, एस्टिमेटिंग टाइम फॉर ऑडियंस इम्पैक्ट, एनालाइजिंग द ऑडियंस नीड्स। Successful educational communication is dependent upon the skills of understanding the negative characteristics of the audience, verbal communication and body language, estimating time for audience impact, analyzing the audience needs. Let me tell you the right answer. The right answer is D. D is the right answer. It depends upon verbal communication and your body language. क्योंकि verbal and non-verbal both are dependent on one another. And analyzing the audience needs, उनकी needs जानना बहुत जरूरी है, because you have to meet the mind. You have to do what? Meet the mind of the other person. तो नीड्स के अकॉर्डिंग ही कम्युनिकेशन होता है। अंडरस्टैंडिंग द नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, आप नेगेटिव क्यों देखोगे ऑडियंस के कैरेक्टरिस्टिक्स? दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू, राइट? बट वर्बल और नॉन वर्बल साथ रखना आर इंपॉर्टेंट। एस्टिमेटिंग टाइम फॉर ऑडियंस इम्पैक्ट, टाइम भी आप एस्टिमेट करके कुछ नहीं कर पाओगे, ज्यादा जरूरी है उनकी नीड्स को एनालाइज करना। इफेक्टिव एजुकेशनल कम्युनिकेशन डिपेंड्स ऑन, दोबारा से एजुकेशनल भी आ सकता है या अकेडमिक भी आ सकता है। नॉन रेसिप्रोकल, रिसेप्टिव, कंटिन्यूअस, कोर्सिव। एक इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन या एजुकेशनल कम्युनिकेशन इज ऑलवेज व्हाट? इट इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। अब याद रखना, देयर आर थ्री टाइप्स या थ्री मॉडल्स टू कम्युनिकेशन। फर्स्ट इज कॉल्ड एज लीनियर मॉडल। लीनियर मॉडल ये सबसे पहले आया था। दिस वाज बेसिकली गिवन बाय एरिस्टोटल। एरिस्टोटल ने क्या कहा? जब एक स्पीकर होता है, जब भी स्पीकर अपना मैसेज देता है, दैट इज ऑन अ पर्टिकुलर मैसेज इज ऑलवेज ऑन अ पर्टिकुलर ओकेजन। एक पर्टिकुलर ओकेजन होगा जिसपे मैसेज होगा और ये किस तक पहुंचता है? ऑडियंस तक। एंड हम ऑडियंस पर क्या देखते हैं? इफेक्ट देखते हैं कि उस पे ऑडियंस पे क्या इफेक्ट आया। सब साइलेंस हो गए, मतलब बहुत इंपैक्टफुल एमएलए की स्पीच थी, कोई एमएलए की क्या थी? कोई स्पीच थी, बड़ी ही इफेक्टिव, लेकिन यहाँ पे कोई फीडबैक नहीं होता। सो कम्युनिकेशन व्हेन देयर इज नो फीडबैक एंड ओनली इफेक्ट ऑन द ऑडियंस, अफेक्ट ऑन द ऑडियंस इज चेक्ड, देन इट इज कॉल्ड एज लीनियर या वन वे कम्युनिकेशन। देन वी हैव इंटरैक्टिव। उसके बाद क्या है? इंटरैक्टिव, या फिर आप कह सकते हो टू वे कम्युनिकेशन मॉडल। टू वे कम्युनिकेशन मॉडल। अब यहाँ पे वी हैव द सेंडर, वी हैव द रिसीवर, और रिसीवर क्या देता है? फीडबैक भी देता है। क्या देगा? फीडबैक भी देगा। सो दिस इज व्हाट? सेंडर, रिसीवर, फीडबैक। यहाँ टू वे प्रोसेस हो रहा है, टू पीपल आर इन्वॉल्व, सो दिस इज इंटरैक्टिव। थर्ड इज ट्रांजैक्शनल कम्युनिकेशन।
ट्रांजैक्शनल कम्युनिकेशन में भी देयर इज फीडबैक, बट दिस फीडबैक इज फेस टू फेस। ये क्या है, ये फेस टू फेस है और ये काफी ज्यादा क्विक होता है। यहाँ रोल रिवर्सल इज वेरी क्विक। सो सेंडर विल सेंड द मैसेज, पहले इनकोड करेगा, ये रिसीवर पे पहुंचा, रिसीवर अंडरस्टैंड करेगा, डीकोड, फिर ये खुद इनकोड करेगा, फिर ये डीकोड करेगा। और ये जो प्रोसेस है फीडबैक का, बीच में नॉइज है, यहाँ मैसेज है, ये बहुत जल्दी मूव करेगा अकॉर्डिंग टू द फील्ड ऑफ नॉलेज। यहाँ का फील्ड और यहाँ का फील्ड, कॉन्टेक्स्ट सेम होगा, माइंड सेम होगा, फील्ड सेम होगा, तो इंटरप्रिटेशन भी जल्दी होगी। ये मॉडल क्या कहलाता है? दिस इज ऑलवेज यूज्ड इन क्लासरूम फॉर एजुकेशनल पर्पसेज, व्हेन यू आर टॉकिंग वन बाय वन, यू नो, व्हेन यू आर टॉकिंग टू वन अनदर इन अ वेरी स्मूथ मैनर। इट इज ट्रांजैक्शनल कम्युनिकेशन। सो ये एकेडमिक कम्युनिकेशन है जो कि कंटिन्यूस इन नेचर है। ये क्या है? रेसिप्रोकल है, कंटिन्यूस है। कैसा है? ट्रांजैक्शनल इन नेचर है। The main purpose of using ICT for classroom communication is what? ICT is Information in Communication Technology. तो यहाँ पे हम ICT मतलब टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं अगर टेक्नोलॉजी का क्लासरूम में, तो क्या उसका फायदा है? मेकिंग क्लासरूम इंटरैक्शंस इंटरेस्टिंग, इट डाइवर्ट्स स्टूडेंट्स अटेंशन इन द क्लास, कीप स्टूडेंट्स engaged in the class, optimizing learning outcomes for teaching. So ICT tools, information communication technology, makes communication very interactive. क्या बनाता है? और भी इंटरैक्टिव बना देता है। पहले हम क्या करते थे? सिर्फ और सिर्फ न्यूज़पेपर के थ्रू इंटरैक्ट कर रहे थे। अब ये धीरे धीरे वास्ट होता जा रहा है बिकॉज वी आर यूजिंग टेक्नोलॉजी। क्लासरूम में इसको यूज करने से क्या हेल्प होती है? हम ऑप्टिमाइज कर पाते हैं अपने लर्निंग को, हम बेटर इंटरैक्ट कर पाते हैं स्टूडेंट्स के साथ। Which of the following theories can be applied to classroom communication? क्लासरूम में जब टीचर पढ़ा रही है तो इज इट अ थ्योरी ऑफ सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, थ्योरी ऑफ मार्जिनलाइजेशन, ऑडियंस मार्जिनलाइजेशन थ्योरी, रिचुअलिस्टिक थ्योरी और थ्योरी ऑफ हेजिमनी? बहुत इजी है। द राइट आंसर इज ए। आई नो यू गाइज नो इट, but let us talk about the theories. So theory of hegemony. What is hegemony? Hegemony is power. So there are always power dynamics that are involved. हमेशा क्या है? Power dynamics involve होते हैं in the hierarchical structure. So this is theory of hegemony. This means हमारी, suppose this is our class. So this is upper class. Class structure है ये, जो मार्क्स ने भी दिया था। ये upper class है और ये क्या है? सबऑर्डिनेट क्लास है, सबऑर्डिनेट क्लास है। सो ये जो हमारी अपर क्लास है, ये सबऑर्डिनेट क्लास पे क्या करती है? अपना रूल्स रेगुलेशन, अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस चलाती है। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं? हेजिमनी। हेजिमनी इज द पावरफुल कंट्रोल, अनवांटेड कंट्रोल करती है। कहाँ से करेगी? कंट्रोल करेगी, वेदर थ्रू पावर, या तो पावर के थ्रू, वेदर थ्रू फोर्स यूज कर सकती है, या थ्रू इंटेलेक्चुअल यूजेस, मतलब हो सकता है पढ़ाई भी इनके बारे में गलत गलत कराए, तो इंटेलेक्चुअल यूजेस के हिसाब से भी। सो दिस बिकम्स द थ्योरी ऑफ हेजिमनी। क्या क्लासरूम में टीचर ऐसा कुछ करती है? नहीं। रिचुअलिस्टिक थ्योरी मतलब ऐसी चीजें जो हमारा रिचुअल है। तो क्या टीचर आके क्लास में रिचुअली पढ़ाती है, एक फिक्स तरीके से पढ़ाती है? नहीं, टीचर तो मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स यूज करती हैं, मल्टीपल तरीके से पढ़ाती हैं, इसलिए ये भी नहीं है। ऑडियंस मार्जिनलाइजेशन इज व्हाट? इट इज अ लीनियर थ्योरी। यहाँ पे लीनियर थ्योरी हो जाती है यूज कम्युनिकेशन की, वेयर हम लोग ऑडियंस पे, हमारे जो ऑडियंस है उन पे होने वाले इफेक्ट के बारे में बात करते हैं। तो इस तरीके से ऑडियंस मार्जिनलाइज नहीं है। हम ऑडियंस के फीडबैक के बारे में भी देखते हैं। क्लास में बच्चे तो फीडबैक करते हैं, सिर्फ ऑडियंस तो नहीं है, दे आर नॉट मार्जिनलाइज। इन अ क्लासरूम students are actively participating. Social constructivism क्या होता है? It is what Lev Vygotsky is talking about. When आप क्या करते हो? आप जब किसी को बहुत कंफर्टेबल कोई चीज बताते हो, so this is a zone of very comfort area. तो यहाँ आप नहीं रहते हो, this is outside your comfort zone, and this is a zone of ZPD, zone of proximal development, जहाँ पे क्या होता है? स्कैफोल्डिंग कर पाते हो। तो टीचर और स्टूडेंट साथ में सोशली इंटरैक्ट करते हैं और सीख पाते हैं
इसे कहते हैं सोशल कंस्ट्रक्शन एंड टीचर यही यूज करती है क्लास में. यू टेंड टू लर्न थिंग्स विद द हेल्प ऑफ टीचर इन अ मोस्ट कंफर्टेबल मैनर. इट इज कॉल्ड एज स्कैफोल्डिंग. सो फर्स्ट थ्योरी हम यूज कर रहे हैं, थ्योरी ऑफ सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म. नाउ सी कम्युनिकेशन एंड टीचिंग एप्टीट्यूड साथ आ गया है ना. Which of the following will help overcome communication barriers? Communication barriers अगर हटाने हैं तो क्या कर सकते हो? Focused listening, neglecting semantic noise, top-down command structure, use of cliched idioms. So right answer सबको पता है, it should be A. फोकस लिसनिंग करोगे, अगर ध्यान से सुनोगे तो आप क्या कर सकते हो, ओवरकम कर सकते हो बहुत सारे बैरियर्स. अगर आप निग्लेक्ट कर दोगे सिमेंटिक नॉइजेस, मतलब लैंग्वेज से रिलेटेड बैरियर्स निग्लेक्ट कर दोगे तो आगे जाके प्रॉब्लम ही होगी, तो ये तो गलत हो गया. अगर सिर्फ टॉप डाउन दोगे तो ये बहुत ज्यादा फॉर्मल बन जाता है. फॉर्मल से डिलेड मैसेज होते हैं, डिलेड फीडबैक होते हैं, क्लास में इतना ज्यादा फ्रूटफुल भी नहीं रहेगा और ये कम्युनिकेशन. और क्लीशे यूज करोगे या जार्गन्स यूज करोगे तो कम्युनिकेशन बोरिंग है. फोकस्ड लिसनिंग करोगे सो इट इज बेटर. लिसनिंग और हियरिंग अलग अलग होता है. क्या होता है लिसनिंग? क्या होता है जब आप किसी से अटेंटिव होके सुन रहे हो कोई चीजें, अटेंटिव होके, आप क्या हो, आप एक्टिव हो, अटेंटिव हो, आप इन्वॉल्व्ड हो. आप हियरिंग तो सब्जी वाले भैया बोल रहे हैं सुबह सुबह सब्जी ले लो भी करते हो, लेकिन आप क्लासरूम में लिसन करके अटेंटिव होके बातों को इंटरनलाइज करते हो, लेकिन सुनी हुई हर साउंड को इंटरनलाइज नहीं करते हो. सो रिसीविंग साउंड्स कैन बी हियरिंग, पर अंडरस्टैंडिंग दो साउंड्स इंटरैक्टिव तरीके से एक्नॉलेज करना उन चीजों को इज लिसनिंग. सो फोकस्ड लिसनिंग इज नीडेड फॉर फर्स्टली अ गुड कम्युनिकेटर. If the data is being recorded using technical media, which among the following necessary steps on the way of its interpretation are used? Transcription, structural equation modeling, sequential analysis or sampling. If the data is recorded using technical media use करके आप data record कर रहे हो, तो right answer is A. उसको हम transcription कहते हैं. Data को record करना is transcription. Then in classroom situation, a teacher organizes group discussion to help arrive at a solution of a particular problem. In terms of the model of communication, which model is used? Transactional, interaction, horizontal और linear? एक help कर देती हूँ, horizontal तो कोई मॉडल ही नहीं है वैसे, तो इन तीनों में से बता दो. एक क्लासरूम में टीचर ने क्या कर दिया, कुछ ग्रुप बना दिए और बोला कि डिस्कस करो और एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है. तो कैसा मॉडल यूज हो रहा है? अभी हमने तीनों मॉडल्स डिस्कस करे हैं. टेक योर टाइम. इस क्वेश्चन पे आई विल गिव यू मोर टाइम, थोड़ा टाइम लो. What should be the right answer? Okay, so the right answer is A. It is transactional model. ये कैसा मॉडल है? ट्रांजैक्शनल मॉडल, जहां पे क्या कर रहे हो आप, रोल रिवर्सल कर रहे हो जल्दी जल्दी, रोल रिवर्सल एंड दैट टू वेरी रैपिड एक्सचेंज ऑफ मैसेज. क्या कहते हैं हम लोग? ट्रांजैक्शनल कम्युनिकेशन कहते हैं. Today's media society equation is largely, आज की मीडिया और सोसाइटी की इक्वेशन क्या है? मिस्टिकल, मॉरली बाउंड, कंज्यूमर कॉन्शियस और ट्रेडिशन सेंट्रिक. नाउ मास मीडिया क्या करती है? मास मीडिया इज अ मीडिया दैट इज गोइंग टू डिलीवर द मैसेज टू मासेस. मास क्या है? सोसाइटी. हम सोसाइटी ही तो मास मीडिया का पार्ट है. वी कंज्यूम इट. So this means that society and communication that is given to them, या mass communication that is mediated to them, they are always interrelated. So mass communication हमेशा कुछ tools use करके होता है, उन्हें हम कहते हैं मीडिया.
एंड इसकी डिपेंडेंसी सोसाइटी पे है, and society is dependent on mass communication. Mass communication is dependent on society. They are interrelated with one another. Whatever is happening in the society is projected in mass communication, and mass communication भी देखते कौन है, सोसाइटी के लोग, और बाद में अपनी आइडियोलॉजीज भी उससे बिल्ड करते हैं. ठीक है, देर आर अ लॉट ऑफ इंटरडिपेंडेंट नेचर दैट इज सीन. सो अगर एक प्रॉब्लमेटिक है तो दूसरा भी प्रॉब्लमेटिक बन जाएगा. हम मास कम्युनिकेशन क्यों यूज करते हैं? इट इज यूज्ड फॉर सर्वेलेंस. वो हमारे ऊपर सर्वेलेंस रखता है. हमें उससे क्या मिलती है? इंफॉर्मेशन मिलती है, उससे हमें एजुकेशन मिलती है. देयर इज सम सॉर्ट ऑफ कंट्रोल ओवर अस. देयर इज इट इज डन फॉर न्यूज, या फिर कह सकते हो इट इज डन फॉर परसुएशन. जैसे हम एडवर्टाइजमेंट्स देखते हैं, एडवर्टाइजमेंट से हमें कोई चीज खरीदनी है, कोई मोबाइल खरीदो, ये वाला मोबाइल खरीदो, दिस क्रीम विल मेक यू इवन लुक, यू विल लुक मोर ब्यूटिफुल विद दिस क्रीम. सो ये सारी चीजें क्या होती है? परसुएशन. यू आर गेटिंग परसुएडेड बिकॉज ऑफ मास कम्युनिकेशन, या फिर आप कह सकते हो एडवर्टाइजमेंट्स. सो दीज आर द वेरियस वेज. आप क्या कर सकते हो? सोसाइटी का बॉन्ड, सोसाइटी में कल्चरली टुगेदर लाने के लिए आपको कम्युनिकेशन का मॉडल चाहिए, मास कम्युनिकेशन चाहिए सोसाइटी को साथ लाने के लिए. जिससे आप और क्या यूज कर सकते हो? ये वर्ड इंटीग्रेशन ऑफ द सोसाइटी. सो दिस इज व्हाई सोसाइटी एज वेल एज कम्युनिकेशन, या फिर आप कह सकते हो मास कम्युनिकेशन, आर इंटर रिलेटेड. तो वो किस इक्वेशन पे बेस्ड है? द राइट आंसर इज सी, दैट इज कंज्यूमर कॉन्शियसनेस. हम लोग कंज्यूमर्स हैं, वी आर कंज्यूमर्स. सो वो हमारे लिए होता है, हमारी ग्रेटिफिकेशन के लिए. दिस इज कॉल्ड एज कंज्यूमर ग्रेटिफिकेशन ऑल्सो. कंज्यूमर्स भी उन पे डिपेंडेंट है. देयर इज एन इंटरडिपेंडेंट नेचर. The dance of the honey bee conveying to other bees where the nectar will be found is an example of. एक हनी बी दूसरी हनी बी को जाके अपनी बातें बता रही है कि नेक्टर कहाँ मिलेगा. इज इट मास कम्युनिकेशन, ग्रुप कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल? राइट आंसर इज बी, इट इज ग्रुप कम्युनिकेशन. क्या है? ग्रुप कम्युनिकेशन. अब यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट करते हैं मास कम्युनिकेशन के बीच में एंड ग्रुप कम्युनिकेशन के बीच में. तो मास कम्युनिकेशन क्या होता है? मास कम्युनिकेशन इज व्हेन वन ग्रुप या फिर वन सोसाइटी और मे बी वन पर्सन और वन इंस्टीट्यूशन क्या करता है? मास को मैसेज भेजता है, लार्ज नंबर ऑफ पीपल को. मोस्टली इट इज हेट्रोजीनियस इन नेचर. अब ये जो भी लोग सुन रहे हैं ये आपस में एक दूसरे को नहीं जानते हैं. इट इज अ हेट्रोजीनियस ग्रुप because they are so different. They are anonymous. मैंने आज क्या किया, एक YouTube वीडियो डाली. मैंने एक YouTube वीडियो आज मीडिया पे डाल दी है और मेरे को पता है कि वहां पे 1K लोगों ने उसको देखा है. अब इस 1K में कौन है? दे आर ऑल एनोनिमस. कोई भी उसको क्लिक कर सकता है, जरूरी नहीं है मेरे स्टूडेंट्स करें. सो इट इज हेट्रोजीनियस, इट इज एनोनिमस, इट इज वास्ट पीपल वॉचिंग इट एट वंस, बट देयर इज नो फीडबैक और देयर कैन बी डिले इन फीडबैक, या फिर डिले होगा फीडबैक के अंदर. सो दिस इज व्हाट मास कम्युनिकेशन. बट ग्रुप कम्युनिकेशन के अंदर आई नो हु विल लुक एट द कम्युनिकेशन. तो यहाँ पे होमोजीनियस ग्रुप होता है, होमोजीनियस ग्रुप होता है एंड देयर इज फीडबैक. वहां पे फीडबैक भी मिलता है. मैंने यहाँ पे यूट्यूब पे वीडियो डाली, यहाँ पे मैंने अपनी क्लासरूम में जिसमें 50 स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैंने एक वीडियो कंटेंट क्रिएट किया. तो यहाँ पे मुझे पता है कौन कौन देखेगा एंड आई नो देयर नेम्स ऑल्सो. दिस इज ग्रुप कम्युनिकेशन. सो हनी बी ने जाके अपने दोस्तों को बताया है. सो दैट इज व्हाट, दैट इज ग्रुप कम्युनिकेशन. ऐसे ही इंट्रापर्सनल क्या होता है? with oneself. When you are talking to oneself, what is interperson? Two people are talking. It is also called as interactive communication. Which of the following is the function of mass media? Mass media का function क्या है? To transmit culture, to formulate national policies, to help judiciary to take decision, to stabilize share market. तो हमने बहुत explicitly अभी इसे पढ़ा कि कल्चर को फॉर्म करता है मास मीडिया. मास मीडिया एंड कल्चर आर इंटर रिलेटेड.
वो कैसे हैं? दे बोथ आर इंटर रिलेटेड टू वन अनदर. ठीक है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कम्युनिकेशन फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो. सही सीक्वेंस क्या है? पहले इंफॉर्मेशन मिलती है, फिर एक्सपोजर होता है, फिर परसुएशन, फिर बिहेवियरल चेंज होता है. और इज इट परसुएशन, इंफॉर्मेशन, बिहेवियरल चेंज एंड देन एक्सपोजर? एक्सपोजर, इंफॉर्मेशन, परसुएशन, बिहेवियरल चेंज. Behavioral change, information, persuasion and exposure. What should be the right answer? Think a little. Take some time, think a little and tell me the right answer. Okay, let me tell you the right answer. So the right answer here is C. सबसे पहले क्या होता है, आपको किसी भी चीज की, किसी न्यूज की एग्जाम्पल देखो, न्यूज पता लगी आपको कोई, तो उस चीज से आपको क्या मिला? एक्सपोजर मिला. क्या मिला? एक्सपोजर मिला. उससे आपने इंपॉर्टेंट चीज, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की इंफॉर्मेशन गेन कर ली, इंफॉर्मेशन गेन कर ली. अब ये आपको परसुएड करेगा, इनमें से कुछ चीजें आपको परसुएड करेंगी जो आप याद रखोगे, है ना. इसे कहते हैं परसुएशन. एंड ये परसुएडेड चीजें, जैसे कि मुझे इंफॉर्मेशन मिली थी दैट एप्पल ने नया फोन लॉन्च किया है, ठीक है. अब ये फैक्ट्स हैं कि उसके अंदर नई नई फीचर्स आ गए हैं. इन्फॉर्मेशन मिली मुझे बहुत मन है अपना फोन चेंज करने का. आई एम फुली कन्विंस्ड दैट आई विल बी टेकिंग द न्यू लेटेस्ट सीरी आईफोन, वट एवर इट इज, वट एवर मे इट बी, चाहे मुझे अपनी किडनी ही सेल ऑफ करनी पड़े. दिस विल डू वॉट? दिस विल हैव अ बिहेवियरल चेंज. मेरे ऊपर एक बिहेवियरल चेंज हो जाएगा. सो इस तरीके से हम क्या देखते हैं, दैट वी लैंड एट अ कंप्लीट डिफरेंट एंटिटी, वी बिकम अ कंप्लीट डिफरेंट एंटिटी बिकॉज ऑफ परसुएशन. एक टर्म है बहुत इंपॉर्टेंट, आज आप अपना होमवर्क ले लो या फिर वैसे भी उसके बारे में पढ़ लेना, गेट कीपिंग. हमेशा जब भी मीडिया आता है तो उसमें एक थ्योरी आती है गेट कीपिंग की. नाउ व्हाट इज गेट कीपिंग? जब भी मीडिया wants to tell you something, there are always certain filters. Now these filters can be the associations that are there, these can be the unwanted knowledge that they do not want to share you, and then the knowledge is given to the audience. So this filtering or this blocking of the information that is unnecessary or maybe hazardous to you or that should not be disclosed to you, उसे हम कहते हैं gatekeeping. So gatekeeping is a theory of keeping some information. This is done by mass media a lot. ऐसे ही जब भी हम मास मीडिया के साथ इन्वॉल्व होते हैं, सो देयर आर फ्यू थिंग्स दैट वी डू सेलेक्टिव अटेंशन. सेलेक्टिव अटेंशन क्या होता है? किसी किसी चीज पे अटेंशन देते हैं, किसी पे नहीं देते हैं. मुझे आज मम्मी के साथ सीरियल देखना है बैठ के, सेलेक्टिव अटेंशन. तुम चाहे उस टाइम क्रिकेट मैच क्यों ना आ रहा हो, ये मेरी चॉइस है, मुझे क्या चीजें देखनी है, सेलेक्टिव अटेंशन. देन देयर इज सेलेक्टिव रिटेंशन. उस सीरियल में से मैंने सीख लिया किस तरीके से, गंदी तरीके से मुझे बात करना, ऐसे रूडली बात करना सीख सकते हैं किसी के साथ. सच अ नेगेटिव थिंग टू लर्न, बट पीपल डू इट. व्हेन यू कंज्यूम अ वेरी बैड काइंड ऑफ कंटेंट, यू लर्न दैट कंटेंट, है ना, आप उसमें बिलीव करने लगते हो, तो वही चीजें आपको रिटेन हो जाएंगी. सेलेक्टिव अटेंशन, सेलेक्टिव रिटेंशन. ओके, सो ये दोनों चीजें इन्वॉल्व होती हैं जब आप क्या कर रहे हो, कोई भी न्यूज देख रहे हो या कोई भी मास कम्युनिकेशन की चीज को कंज्यूम कर रहे हो. सेलेक्टिव अटेंशन, सेलेक्टिव रिटेंशन. सेलेक्टिव एक्सपोजर भी होता है, आप अपने आप को किसी चीजों के साथ एक्सपोज करोगे, किसी के साथ नहीं. दैट इज अप टू यू.
Then given below are two statements, assertion and reason. Classroom communication involves the clear decoding of messages by the students. By increasing redundancy, we can improve the fidelity of communication. अगर रिडंडेंट फालतू की बातें हटा दोगे तो कम्युनिकेशन की क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी. एंड कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स क्लियर डिकोडिंग ऑफ द मैसेजेस. राइट आंसर क्या है? ए. ये तो बहुत ज्यादा जरूरी है. टीचर को क्या बताना है? प्रिसाइज इंफॉर्मेशन देनी है. इसीलिए ही तो हमेशा स्ट्रक्चर्ड क्लासरूम होना चाहिए ताकि बच्चे भी कंफ्यूज ना हो. मैसेज क्रिस्प हो. 7 C's 4 S's पढ़ लेना. 7 C's 4 S. स्ट्रेंथ होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए मैसेज में, क्लियर, कंसाइज, कंप्लीट, ये सब चीजें जरूरी हैं ताकि बच्चों को समझ आए. अगर इंक्रीज रिडंडेंसी, अगर बहुत ज्यादा फालतू की बातें हो गई तो क्या होगा? आपकी फिडिलिटी क्लास में समझ आना बंद हो जाता है. सो इंक्रीज रिडंडेंसी, सारी फालतू की चीजों को हटा दो ताकि ज्यादा समझ आए. ठीक है. सो ए इज ट्रू एंड आर आर ट्रू. Fleeting changes that occur in facial expression of teachers in a classroom are described as. Now I told you, classroom में आपका verbal, in fact हर जगह verbal and non-verbal communication always go hand in hand. Verbal and non-verbal communication go hand in hand. Where you see that अगर मैं आपसे गुस्से में बात कर रही हूँ, आपने होमवर्क क्यों नहीं किया, और मैं हंस रही हूँ साथ, आपने होमवर्क क्यों नहीं किया, ऐसा तो कोई सेंस नहीं बनेगी, है ना. सो आपका वर्बल नॉन वर्बल बिल्कुल सिंक में होना चाहिए. अगर वो दोनों सिंक में नहीं है सो इट विल क्रिएट डिस्टॉर्शंस. तो अगर एक फ्लीटिंग चेंजेस है, बारी बारी टीचर का फेशियल एक्सप्रेशंस चेंज हो रहे हैं, तो यहाँ पे क्लासरूम में क्या प्रॉब्लम होगी? सिग्निफिकेंट मॉनिटरी मूवमेंट्स, इंफॉर्मेटरी मॉनिटरी मूवमेंट्स, मैक्रो मॉनिटरी मूवमेंट्स, माइक्रो मॉनिटरी मूवमेंट्स. फ्लीटिंग चेंजेस दैट अकर इन फेशियल एक्सप्रेशंस ऑफ द टीचर आर डिस्क्राइब्ड एज. उन्हें हम क्या डिस्क्राइब करते हैं? They are described as, D is the right answer. They are micro monetary movements. Micro monetary मतलब नैनो सेकेंड्स के लिए. फ्लीटिंग क्या होता है? जल्दी जल्दी बदलना. तो ये माइक्रो मॉनिटरी मूवमेंट्स हैं जो जल्दी जल्दी चेंज हो रहे हैं. सो यहाँ पे हमें क्या पढ़ना है? यू हैव टू टुडे रीड अबाउट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन लाइक साइलेंस, facial expressions, oculises, gaze, eye contact, then you have order, then artifacts. आर्टिफैक्ट्स क्या होते हैं? किसी की फोटो रखना, किसी का दिया हुआ पेंडेंट रखना, फ्लावर रखना, है ना. देन यू हैव बॉडी मूवमेंट्स, काइनेस्थेटिक जिसे कह सकते हैं, प्रॉक्सिमिक्स, क्रोनमिक्स, हैप्टिक्स, है ना. ये सारे आप आराम से पढ़ लेना, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. Identify the correct sequence of decoding the process of communication in classroom. Classroom का correct model क्या होता है to decode the message? Evaluation, interpretation, sensory involvement and feedback. Feedback, sensory involvement, interpretation and evaluation. Then you have sensory involvement, interpretation, evaluation, feedback. Interpretation, evaluation, feedback and sensory involvement. Decoding the message, decoding, encoding, दो terms. Encoding क्या होता है? Encode का मतलब होता है पैक करना मैसेज को. ये कौन करता है? सेंडर करता है. पैक करना मैसेज को कि ताकि कोई अंडरस्टैंड करेगा रीड करके. डिकोड क्या होता है? इट इज टू अंडरस्टैंड द मैसेज, दैट इज डिकोडिंग. उसे ब्रेक डाउन करना. क्या करना? ब्रेक डाउन ऑफ द मैसेज. सो द राइट आंसर वुड बी सी. सी इज द राइट आंसर. आप सबसे पहले अपना सेंसरी इन्वॉल्वमेंट करते हो. कोई सेंस ऑर्गन यूज करके, देख के, सुनकर, कैसे तो आप इंटरप्रेट करना स्टार्ट करोगे, उसको इंटरप्रेट करोगे, इवैल्यूएट करोगे. फीडबैक सबसे इजी क्वेश्चन था ये, क्योंकि फीडबैक तो बाद में ही आएगा, है ना.
तो यही सही था. Then you have to match the following: linear communication, interactive communication, and transactional communication. So members are given themes on communication which they are required to hold discussions on. ग्रुप के मेंबर्स हैं, कुछ मेंबर्स हैं, उनको क्या दे दिया है, एक डिस्कशन करने के लिए थीम दे दिया है. अ टीचर इन द क्लासरूम प्रेजेंट्स स्ट्रक्चर्ड कंटेंट. The principal of a college holds the staff meetings for understanding their problems, and the teachers and the students in a college go on rampage. लीनियर कम्युनिकेशन में आपको फीडबैक की नीड नहीं होती है. इंटरैक्टिव में सब साथ बात करते हैं, और ट्रांजैक्शनल के अंदर जल्दी जल्दी चेंजेस आते हैं. सो द राइट आंसर इज सी. सी राइट आंसर है. ए 2 के साथ मैच होगा. लीनियर क्या होता है? लीनियर इज व्हेन अ टीचर इन अ क्लासरूम प्रेजेंट्स स्ट्रक्चर्ड कंटेंट, दैट इज लीनियर. यहाँ पे लेक्चर दे रही है टीचर, आप इन्वॉल्व नहीं हो. देन क्या है, सॉरी, थर्ड के साथ मैच करना है आपको 2. इंटरैक्टिव क्या है? जहां पे प्रिंसिपल और जो प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज एक स्टाफ मीटिंग रख रही है टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स. सो टीचर से तो कुछ पूछेगी, ये इंटरैक्शन हो गया. ट्रांजैक्शनल होता है जल्दी जल्दी चेंजेस लाना. तो जल्दी जल्दी चेंजेस क्या आ रहे हैं? मेंबर्स आर गिवन थीम्स टू कम्युनिकेट, दे विल डिस्कस थिंग्स. तो यहाँ पे सी इज द राइट आंसर. आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन. ये लास्ट क्वेश्चन है. Differentiation between acceptance and non-acceptance of certain stimuli in classroom communication is the basis of. आप select करते हो कौन सी चीज आपके लिए stimulus है. क्या है? आपके लिए stimuli है. So it is possible that मेरे लिए क्लास में फर्स्ट आना is a stimulus, it is a catalyst. I get excited because of this and I study hard. Maybe for you it is going school earlier, it is going to home earlier. It depends. आपके लिए क्या motivation है, मेरे लिए क्या motivation है. It is selective expectation of performance, selective affiliation of peer group, selective attention and morality. सबके बीच में differentiation है acceptance और non acceptance का. इसे क्या बोलते हैं? सी इज द राइट आंसर, सेलेक्टिव अटेंशन. ये मेरे ऊपर है, मुझे किसके ऊपर अटेंशन डालनी है. सेलेक्टिव अटेंशन, सेलेक्टिव रिटेंशन, है ना, ये सब मेरे ऊपर है, मुझे क्या चीजें याद रखनी है. सो सी बिकम्स द राइट आंसर. आई होप दिस इज क्लियर. दीज वर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वेरी इंपॉर्टेंट. इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट तो वॉज दिस मास कम्युनिकेशन एंड ग्रुप कम्युनिकेशन. बहुत बार पेपर में आ रहा है द डिफरेंस बिटवीन देम. मास कम्युनिकेशन के कैरेक्टरिस्टिक इज दैट इट इज लेस कॉस्टली. ये कम कॉस्टली होता है. इसकी रीच बहुत ज्यादा होती है. रीच टू मेनी, बहुत लोगों तक ये पहुंच जाता है. देन ये हेट्रोजीनियस इन नेचर एंड एनोनिमस लोगों तक पहुंचता है एंड देयर इज नो फीडबैक. वाइल ग्रुप कम्युनिकेशन का रीच तो लोगों के पास कम होगा, लेकिन होमोजीनियस ग्रुप होता है और फीडबैक काफी ज्यादा अच्छा होता है. ओके, इसे नोट करो एंड देन वी विल वाइंड अप द क्लास. ओके, सो विद दिस आई कैन वाइंड अप द क्लास. थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल डे. ठीक है, आई होप यू गाइज अंडरस्टूड ऑल ऑफ दीज थिंग्स. ये भी याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है. कम्युनिकेशन एंड सोसाइटी का रोल एक दूसरे पे. एक और चीज आज हमने लिखी थी, वो भी बहुत पेपर में आता है, एंड दैट इज हॉट एंड कोल्ड मीडिया. वेयर इज इट? हाई कॉन्टेक्स्ट एंड लो कॉन्टेक्स्ट. सो आई लीव यू हेयर. इसको छोड़ देती हूँ यहाँ पे. आई गिव यू 2 minutes एंड देन आई विल स्विच ऑफ द कैमरा, है ना. तब तक यू मे नोट दिस डाउन. दिस वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो कॉन्टेक्स्ट के बारे में बहुत बार पेपर में आ चुका है. दिस इज अ PYQ दैट इज रिपीटेटिवली आस्क्ड इन द पेपर. जैसे हॉट एंड कोल्ड मीडिया पेपर में आ रहा था, इसी तरीके से ये बहुत पेपर में आ रहा है. ओके, सो यू मे नोट दिस एंड देन आई विल स्विच ऑफ. बाकी इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अदर थिंग्स, राइट.